Good morning, student. Myself, Dr. Vikas Kumar Jangu, Assistant Professor of Botany in Government National College, Sirsa. Today we study about the enzymes. This topic is included in BSc final student in semester 6. What is enzyme? The living beings are highly complex but integrated chemical factories. About 1000 chemical reactions are occur within the space of minute cell that is only 20 micrometer in size at the ordinary temperature or the pressure. Such reaction is cannot be carried out in the physical environment without a appropriate condition at like very high temperature, pressure, acidity. Plant and animal have able to achieve this because the presence of a proteinous substance that is called the enzyme or the biocatalysis. So today we study about the introduction of enzyme, that is the characteristic or property of enzyme or the classification of enzyme. An enzyme is a protein or RNA produced by living cell, which is highly specific and highly catalytic to its substrate. Enzymes are a very important type of macromolecule biological catalyst. Due to action, chemical reaction in organism can also be carried out efficiently and specifically under mild condition. So we can say that enzyme is a remarkable biological catalyst that enable and control enormous variety of biochemical reaction giving in a cells. In simply, we can say that enzyme is a proteinous substance which accelerate the reaction but cannot undergo any change in its shape. बिना किसी शेप में चेंज किए हुए ये जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको इंक्रीज कर देता है, दैट इज द एंजाइम और द और ये इट इज ए प्रोटीनियस सब्सटेंट, ये एक प्रोटीनियस सब्सटेंट है. डिक्सन एंड बेब्स have described an enzyme as a protein with catalytic property due to its power to specific एक्टिवेशंस. तो इंजाइम के बारे में अब हम कह सकते हैं कि इंजाइम एक ऐसा कैटालिस्टिक है जो सबस्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है और इस जो रिएक्शन होती है उसको एसिलरेट कर देता है, उसको बढ़ा देता है, बट कैन नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, और वो रिएक्शन के अंदर भाग नहीं लेता. द टर्म enzyme was coined by the Cohen in 1878. The picture show the Friedrich Wilhelm Koch, biological catalyst that had previously called the ferments, and the Kohane says this fermentase as a enzymes की फर्मेंटेंस, पहले एंजाइम को फर्मेंटेंस कहा जाता था और बाद में फिर कोहने ने इसको सबसे पहले कहा एंजाइम. एंजाइम मीन्स होता है दैट इन, और जाइम मीन्स होता है ईस्ट. लेटरली वी कैन से दैट इन ईस्ट, ईस्ट के अंदर, बिकॉज ऑफ मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल रिएक्शन पॉपुलरली नोन एज एल्कोहल फर्मेंटेशन बाय जाइमेज एंजाइम इन द ईस्ट. कि जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है जाइमेज एंजाइम के द्वारा ईस्ट में, इसके ऊपर इसका नाम दिया गया, दैट इज द enzyme, and that is coined by the Wilhelm Kohne in 1878. Many enzymes are contributed in the discovery of the enzymes.
Dulux in 1883 developed the system of naming of the enzyme. The Buchner and Buchner in 1897 found that yeast extract could cause fermentation of sugar just as living yeast cell would do. Buchner in 1903 also isolated the first enzyme and he was awarded Nobel Prize in 1903. The first enzyme obtained in purified crystalline form by the was urease enzyme, and this is conducted by the J.P. Sumner in 1926. So it was soon discovered that enzymes are proteinous in nature. Now we start the properties of enzymes or the characteristic of the enzyme. The enzyme possesses many outstanding characteristics. These are first is the colloidal natures. The enzyme molecule are a giant size and their molecular weight ranges from 12,000 to the over the 1 million, and they are very large compared with the substance or functional group they act upon. It has been observed that the molecular weight of many enzymes prove to be approximately as n-fold multiple where n is an integral of 7500 and which is found to be an unit of the most protein. Second is the catalytic nature or the effectiveness of the enzyme. An universe feature of our enzymatic reaction is the virtual absence of any side products. They are recovered as such without undergoing any qualitative or quantitative change. This is the reason why they in very small amount are capable of catalyze the transformation of a large quantity of substance. इनकी जो रिएक्शन होती है कैटालाइटिक नेचर होती है और ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। अगर थोड़ा सा अमाउंट एंजाइम का रिएक्शन के अंदर डाल दिया जाता है तो ये बहुत सारे सब्सटेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। द कैटालाइटिक पोटेंशियल ऑफ एंजाइम इज एक्सट्रीमली ग्रेट, कि इनकी जो कैटालाइटिक कैपेसिटी होती है पोटेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कि अगर आप थोड़े से अमाउंट में स्मॉल अमाउंट में एंजाइम्स को डाल देते हैं रिएक्शन में तो वो बहुत सारा ज़्यादा मात्रा में जो सब्सटेंट होता है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। जो थर्ड इसकी प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक है एंजाइम का, विच आर स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन। Accordingly, four pattern of enzyme specificity has been recognized कि इनका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी या जो इसकी करेक्टरिस्टिक होता है वो होता है इसकी स्पेसिफिसिटी, दैट एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर्स। A particular enzyme is genetically coded to catalyze one or few specific reaction, कि एक जो एंजाइम होता है वो एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करता है। इस हिसाब से हम इनकी जो स्पेसिफिसिटी होती है उनको हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का मीन्स ये होता है कि एक एंजाइम जो होता है वो हमेशा एक ही सब्सटेंट को रिएक्ट कर दिया उस पर रिएक्शन करता है। सम एंजाइम आर कैपेबल ऑफ एक्टिंग ऑन ओनली वन सब्सटेंट। These enzymes are specific for a particular substance. For example, urease enzyme. Urease enzyme only act on urea to produce ammonia and carbon dioxide. Similarly, carbonic anhydrase enzyme. The carbonic anhydrase enzyme bring about the union of CO2 and water to form the carbonic
एसिड्स। और इसका एग्जांपल है मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। द मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम act on malic acid and not to the any other keto acid। तो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी जो इंजाइम है which are action only a specific substance, not the other substance। The second group is the type of specificity is known as the group specificity। कि some enzyme are capable to catalyze the reaction of a structurally related group of components। कि एक जो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एक ग्रुप को रिएक्ट करते हैं, एक ग्रुप को एक्ट करते हैं। These enzymes act on specific organic group। For example, lactic dehydrogenase catalyzes the interconversion of pyruvic and lactic acid and also of a number of other structurally related components। Another example, इसका मतलब ये होता है कि ये जो एंजाइम होते हैं वो एक सेम विच आर एक्ट ऑन ए स्पेसिफिक ऑर्गेनिक ग्रुप, वो जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिक ग्रुप होता है उसी के ऊपर एक्ट करते हैं, उसी के ऊपर रिएक्शन करते हैं। कि जैसे लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, वो कैटालाइज्ड करता है, इंटरकन्वर्सन करता है पायरुविक एसिड एंड लैक्टिक एसिड एंड आल्सो ऑफ ए नंबर ऑफ अदर स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपोनेंट्स। की वो पायरुविक एसिड पर भी एक्शन कर सकता है, लैक्टिक एसिड पर भी एक्शन कर सकता है, और ऐसे दूसरे जो इससे इनके स्ट्रक्चरली उनकी स्ट्रक्चर रिलेटेड कंपोनेंट्स होता है, उन सब कंपोनेंट्स के ऊपर ये क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। सो इट इज कॉल्ड द ग्रुप स्पेसिफिसिटी। तो ग्रुप स्पेसिफिसिटी और एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी में यही अंतर होता है कि एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी में जो एंजाइम्स आते हैं विच आर एक्ट ओनली ऑफ ए सिंगल सब्सटेंट, वो केवल एक सिंगल सब्सटेंट पर एक्ट करते हैं। बट ग्रुप स्पेसिफिसिटी में जो एंजाइम्स आते हैं विच आर कैपेबल टू कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपोनेंट्स, एक जैसे स्ट्रक्चर वाले कंपोनेंट्स जो होते हैं उन सब पर वो क्या कर सकते हैं, कैटालाइज रिएक्शन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्पेसिफिसिटी है विच आर कॉल्ड द ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। इन ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी the most striking aspect of specificity of enzyme is that a particular enzyme will react with only one of two optical isomers। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है उन्हीं पर ये एक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल arginase enzyme are act only on larcinin and not on the D isomers। Similarly, D amino acid oxidize the D amino acid only to corresponding keto acids। Although the enzyme exhibit optical specificity, some enzyme however convert the two optical isomer of a components। For example, alanine resaminase catalyze the interconversion between L and D alanine। So enzyme can distinguish between optical isomers of a substance। For example, the enzyme lactic dehydrogenase is act only on the L-lactate but it not on the D-lactate। तो क्या होता है कि एक ही सब्सटेंट के जो आइसोमर्स होते हैं उनको जो एंजाइम होता है वो डिस्टिंग्विश कर सकता है। कि जैसे लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो केवल एल लैक्टेट पर रिएक्ट करता है, डी लैक्टेट पर रिएक्ट नहीं करता। तो दिस इज द ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। The next specificity is the geometrical specificity। Some enzymes are exhibit specificity toward the cis and transform। For an example, fumarase
enzyme catalyze the interconversion of fumaric and malic acid. It does not react with malic acid, which is cis isomers of fumaric acid or the D-malic acid. So this is the geometrical specificity. The another property of enzyme are the specificity of enzyme action. With few exceptions, the enzyme are specially in the actions. Their specificity lie in fact that they may act on one specific type of substrate molecules, on a group of structurally related components, know only one of two optical isomer of a compound, or know only one of the two geometrical isomer. तो हम ये इसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है उसको हम सारांश में शॉर्ट में यही कह सकते हैं कि कोई भी एंजाइम जो होता है उसकी खुद की एक स्पेसिफिसिटी होती है, जो मैंने अभी आपको जो 4 टाइप बताए हैं उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कोई भी एंजाइम जो होता है वो एक सबस्टेंट मॉलिक्यूल को स्पेसिफाई करता है, उस पर ही रिएक्शन करता है। सेकंड वो होता है जो स्ट्रक्चरली रिलेटेड ग्रुप जो होता है उन सब पर क्या करता है, एक्शन करता है। थर्ड वो होता है कि जो दो आइसोमर्स होते हैं उनको नो ओनली वन ऑफ टू आइसोमर्स ऑफ ए कंपोनेंट्स, और फोर्थ वो होता है ऑन ओनली वन ऑफ टू जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन होता है ऑफ द, जो मैंने अभी आपको 4 टाइप करवाए हैं, दैट इज एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट जो स्पेसिफिक होता है विच ओनली वन सबस्टेंट, जो ग्रुप स्पेसिफिसिटी होती है दैट इज ओनली स्ट्रक्चरली रिलेटेड ग्रुप में, और जो दैट आर द आइसोमर्स होते हैं कि ये दो आइसोमर्स में से एक आइसोमर्स पर ये रिएक्शन कर सकता है, और जो स्टीरियो केमिकल स्पेसिफिसिटी होती है दैट इज ऑन ओनली वन ऑफ टू जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, की जो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं दो, उनमें से केवल एक पर ही ये क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। नाउ इज द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम। ऊपर बताई हुई प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक को छोड़ के एंजाइम में कई और प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। फर्स्ट इज द प्रोटीन नेचर्स, कि मोस्ट ऑफ एंजाइम आर प्रोटीनियस इन नेचर। They may have additional inorganic or non-proteinaceous organic part for their activity. कि most of the enzyme जो होते हैं which are protein, वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और इनके अलावा उन प्रोटीन के साथ कुछ inorganic और non-proteinaceous organic part भी जुड़े होते हैं। For some enzyme connect with maturation of transcript or translation are made up of RNA। कुछ RNA भी ऐसे होते हैं which are from the enzymatic property, these are called the ribozyme। उन्हें हम क्या कहते हैं, राइबोजाइम कहते हैं। For example, snRNA, small nuclear RNA as ribonuclease PR and the peptide transferase which are the ribozyme। तो most of the protein is जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं विच आर द प्रोटीन, वो क्या होते हैं, प्रोटीन। ये भी कहा जाता है कि दैट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। पहले ये कहा जाता था दैट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन आर एंजाइम, कि सभी एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, पर सभी प्रोटीन जो होती है वो एंजाइम नहीं होती। पर आजकल द आरएनए आर आल्सो नोन एज द एंजाइम। कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, दैट इज द कॉल्ड द राइबोजाइम। उन्हें हम क्या कहते हैं, राइबोजाइम। इसके अलावा उनकी जो अदर प्रॉपर्टी है विच आर द मोलिकुलर वेट्स। एंजाइम इज ए लार्ज मॉलिक्यूल, एंजाइम एक लार्ज मॉलिक्यूल है। देयर द मोलिकुलर वेट इज फ्रॉम 6000, दैट इज द फेरोडॉक्सिन। जो बैक्टीरिया फेरोडॉक्सिन होता है उसका मोलिकुलर वेट 6000 होता है, टू द 4 lakh 6 4 and
Pyruvate dehydrogenase enzyme has the 46 lakh molecular weight. तो इसकी जो रेंज होती है मोलिकुलर वेट की वो बहुत ज़्यादा होती है कि जो बैक्टीरियल फेरोडोक्सिन इंजाइम होता है उस वो तो ओनली 6000 उसका मोलिकुलर वेट होता है, जबकि जो पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज इंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है उसका जो मोलिकुलर वेट होता है विच आर 46 लेख, वो कितना होता है 46 लेख। अगला जो इसके आता है इसकी दैट इज द सेंसिटिविटी कि इंजाइम आर वेरी सेंसिटिव टू इन्वायरमेंट फैक्टर लाइक पीएच, हीट, इनिबिटर्स। फर्स्ट इसमें आता है दैट इज द टेम्परेचर और हीट। एट वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी हाई टेम्परेचर द इंजाइम आर इनएक्टिव, कि कम टेम्परेचर में और ज़्यादा टेम्परेचर में जो इंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, दे आर डिस्ट्रॉय, दे आर डीनेचर्स। The sensitivity increase with the increase of molecular weight of the enzymes, कि टेम्परेचर के प्रति उनकी सेंसिटिविटी होती है वो जैसे जैसे उनका मोलिकुलर वेट बढ़ता जाता है उनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो भी क्या होती है बढ़ती जाती है। ऑल enzyme is active on a particular temperature that are between 25 to 35, कि 25 से 35 डिग्री सेंसियल के बीच इनका आइडियल टेम्परेचर होता है जिस पर मोस्ट ऑफ द एंजाइम एक्ट ऑप्टिमल एक्टिविटी, एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो ऑप्टिमल होती है। सो ऑल एंजाइम आर थर्मोलेवाइल्स ऑन हीट सेंसिटिव, तो वो क्या होते हैं हीट सेंसिटिव होते हैं। सेकेंड इसमें जो आता है दैट इज द पीएच, that is the power of hydrogen. Enzymes are active in a very narrow range of pH. A change of minute change of pH disturb the solubility and ionization of active group and alter the enzyme functioning. So drastic change in pH or minute change in pH may even denature the enzymes, की अगर pH में थोड़ा सा भी अंतर आ जाएगा तो उनमें जो इसकी जो एक्टिव साइड है वो क्या हो जाएगी डीनेचर हो जाएगी और इसकी एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। थर्ड इज द इनहिबिटर्स और पॉइजन्स, द सब्सटेंस विच केमिकली एक्ट ऑन एंजाइम एंड परमानेंटली अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड इनहिबिटर्स और पॉइजनर्स। फॉर एग्जांपल हैवी मेटल सेलुलर पॉइजन लाइक carbon monoxide, hydrogen disulfide, cyanides, ultraviolet rays, which are the inhibitors or poisonous of the enzymes. Last is the property or characteristic of enzyme are the reversibility, कि most of the reaction catalyzed by enzyme are reversible. That is, they are catalyzed in both forward and backward direction by the same enzyme, but direction of reaction is determined by the degree of removal of product. That is, the fatty acids and glycerol are converted into fat in the presence of lipase enzyme, and lipase enzyme also convert the fat into the fatty acid and glycerol. So these are the property or characteristic of the enzymes. Now we study about the difference between the enzyme and catalyst. क्या क्या डिफरेंस होता है एंजाइम और एक कैटालिस्ट में, एक इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट के अंदर। The inorganic like catalyst, the enzyme do not alter the chemical equilibrium point of a reversible reaction, but only the speed of the reaction is changed. कि जो कैटालिस्ट होता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिवर्स चेंज कर देता है, बट जो एंजाइम होता है विच आर चेंज ओनली द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, वो उसकी रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको ही चेंज करता है। differ from the catalyst is being the biological product that is the produced from the living cell, कि जो
इंजाइम होता है वो लिविंग सेल के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, दैट इज नॉट फॉर्म इन ए नेचुरली. The catalyst are the small molecule or ion with low molecular weights. उनका जो molecular weights होता है catalyst का वो कम होता है, but enzyme are macromolecules and their molecular weight is 6000 and above. मिनिमम कितना होता है 6000 और वाकई इससे ज़्यादा होता है. The enzyme are all protein and unlike catalyst cannot last indefinitely in reaction system since they being collide in nature and often become damaged or inactivated by the reaction they catalyzed, and they must be replaced constantly by the further synthesis in the body. Unlike catalyst, most individual enzymes are very specific in they are act either on a single और मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरली रिलेटेड ग्रुप्स. की जो इंजाइम्स होते हैं वो या तो एक सिंगल सब्सटेंट को कैटालाइज करते हैं या एक स्ट्रक्चरली रिलेटेड ग्रुप को कैटालाइज करते हैं, उसको रिएक्ट करते हैं, जबकि कैटालाइज्ड आर नॉट हाईली स्पेसिफिक. जो कैटालाइज्ड होता है बीच आर नॉन बायोलॉजिकल इन ओरिजन्स, वो उसका ओरिजन जो होता है वो बायोलॉजिकल नहीं होता, बट एंजाइम इज द बायोलॉजिकली ओरिजिनेट. जो कैटालाइज्ड होता है देयर एक्टिविटी कैन नॉट बी रेगुलेटेड, उनकी एक्टिविटी को रेगुलेटेड नहीं किया जाता, बट एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैन बी अल्टर्ड बाय यूज ऑफ रेगुलेटर्स. उसकी जो एक्टिविटी होती है उसको रेगुलेटर से हम रेगुलेट कर सकते हैं, वो उनको इनहिबिट एक्टिवेट कर सकते हैं या उसको इनहिबिट कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.